Hi guys, we are back with our Bang on case studies. I know you were waiting for it, and a lot of closers were like, "Ma'am, when will we having a hashtag ReachF case studies?" So we have one of our best case study because the person who's sitting over here is Mr. Rajkumar Udit, who is working with Back and Closer from last, I think so, more than 1 year, and he is youngest millionaire of his family and the fastest millionaire that he have become with the help of BCC. So let's know about his case study and why hashtag ReachF, how we have reached to hashtag ReachF. So if you don't know what is hashtag ReachF, I would like to tell you the hashtag ReachF is a hashtag that we are using for a closer who is making 1 lakh rupees as an income consistently every single month. Hi Rajkumar, how are you doing? Yeah, fine, ma'am. How are you doing? I'm also doing well. Please let us know. Please introduce yourself first. From where are you? How you have joined Back and Closer, and few things related to your journey in Back and Closers. Yeah, so I was doing my PGDM. I was in my second year when I started like looking for online things that where can I start some tips like where can I start my earning. So I just got to know about Himanshu sir. So I just paid 99 rupees and joined a workshop of his. Then I attended his workshop. Then in the same WhatsApp group, I got a meeting link that if you have a phone, then you can join a workshop and you can start earning. That time I was in the midway of my second year. That is the final year of my PGDM. So I thought let's give it a try. So it was the month of July week, like July end was there. So I just joined the workshop and then I got to Is know it about this like 2022 or 2023? 2022, right? 2022. Yeah, 2022. So I joined that workshop and got to know about this BCC challenge, means back and closer challenge. And I just paid the amount and joined the BCC. And I thought, let's give it a try. What will it be? Because I was from a finance background, though I thought, why not to give a sales also? Like, let's give a try to sales. So I just paid the amount and joined in the BCC. And in the first month, around I didn't work for around 2 to 3 weeks. Then in the August last week, last year only 2022, I made a sale of 10,000 rupees, and I got earning from there as around 800 rupees from that. So I thought, चलो मेरा पैसा आधा तो आ ही गया है. अब एक दो और सेल करूंगा मेरा पूरा पैसा आ जाएगा. तो ऐसा सोच के मैं फिर स्टार्ट किया और फिर अगस्त का तो एक ही सेल गया. अक्टूबर में गया तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आते गई ऐसा करके. सो आपने अपने जर्नी की शुरुआत एज अ फ्रेशर करी थी, राइट? मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेल्स में कि सेल्स क्या होता है, कैसे ये जर्नी की शुरुआत करनी है. सो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए एज अ फ्रेशर? मेरे को पहले समझ नहीं आया. मैं प्रोडक्ट को पहले समझा जो कि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था. मैं सीधे वैशाली मैम से ही पूछने चला जाता था कि क्या चीज़ है, आपसे ही पूछ लेता था. क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग भी नहीं थे बीसीसी में, तो हाँ मैं जी. सीधे सीईओ से अप्रोच कर रहा था और मैम ने मेरे को हमेशा रिस्पॉन्स भी दिया. मैं ये कभी नोटिस नहीं कर रहा था मैं किससे बात कर रहा हूँ. मैं बस पूछ लेता था क्योंकि मेरे को मेंटर चाहिए था. तो मैं वो सारा चीज़ मैम से पूछता और फिर क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो सबका प्रोडक्ट डिटेल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सेल कर रहे हो. तो मैं फिर पेन पेपर लेके बैठ गया और जितने क्वेरीज आते गए मेरे को, मैं सबका पेन पॉइंट पकड़ के आंसर्स लिखता गया. और जैसे ही पिच करता था, पहले 2 3 महीने तो मैं अपने डायरी से ही पढ़ के पिच किया करता था. फिर उसके बाद डायरी का जरूरत नहीं पड़ता था. जहां भी जाऊँ डायरी बैग में होना चाहिए, ऐसा करके मैं घूम रहा था. ग्रेट ग्रेट. सो जैसे कि स्टार्टिंग में आपकी पहले महीने की इनकम सिर्फ 800 रुपए हुई थी, उसके बाद आप धीरे धीरे कमाने लगे, बट समटाइम इट फील्स कि कितना भी एफर्ट लगा लो हमारी उतनी रिवॉर्ड नहीं मिल रही है. तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? क्या एक रीजन था आपके पास कि आपने बीसीसी को कंटिन्यू किया? तो मोटिव तो पैसा ही था क्योंकि उस टाइम मेरे को घर से, जैसे मैं नोएडा में रह रहा था, अलग शहर था, मैं घर से दूर रह रहा था. तो मेरे को कुछ भी हिट एंड ट्रायल करूँ मेरे को कुछ नुकसान नहीं होने वाला. तो मैं बस हिट एंड ट्रायल करने के लिए ये शुरू किया था. अर्निंग आना शुरू हुई 800 रुपये, नॉट अ बैड थिंग. उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मंथ
अराउंड 6,000 के आसपास जनरेट किया, तो मेरे को ये फैक्टर कि 800 से 6,000 पे आ गया, अब 6,000 से और ऊपर जा सकते। फिर मैं ऐसा ही सोच के कि डेली अगर एक एक सेल भी करूँ तो 30 दिन में 30 कर लूंगा, उसके हिसाब से मैं रेवेन्यू कैलकुलेट किया। उसके बाद अर्निंग में देखा, फिर उस अनुसार मैं काम करना शुरू किया। मैं फिर 2.5 मंथ हो गए थे और मैं डेली के हिसाब से एक एक सेल करना शुरू कर दिया, एंड आई गॉट टू अर्न अराउंड 30,000 फ्रॉम देयर। ग्रेट ग्रेट। तो अभी तक आपको कितना टाइम हो चुका है बैक एंड क्लोजर्स में, एंड अभी तक आपने एवरेज मतलब आप बता सको कि टोटल कितनी इनकम करी है? 1.1 ईयर 3 मंथ हो चुके हैं मेरे। तो अभी तक टोटल अर्निंग मैंने जो की है बीसीसी से, वो है मोर देन 40 लाख। अमेजिंग। मोर देन 40 lakhs फ्रॉम बाय वर्किंग फ्रॉम होम ओनली? आप हमारे ऑफिस में तो नहीं आते? नहीं नहीं, वर्किंग फ्रॉम होम। मैं सोचा कि अभी अगर मैं एमबीए किया और पीजीडीएम जो भी है, एमबीए किया और फिर जैसे कि वहां से मेरे को लगता भी सैलरी पैकेज तो हार्डली 12 LPA लग जाता, जो कि लगा भी मेरे को। मैंने जॉब भी स्टार्ट किया, सोचा कि जॉब भी स्टार्ट करनी चाहिए। अब जब 2 साल दी है मैंने, 15 साल पढ़ाई की, फिर 2 साल ये किया, तो मैं फिर जॉब भी स्टार्ट किया, क्योंकि फैमिली प्रेशर आता है जब पढ़ाई किया है तो थोड़ा बहुत जॉब भी कर लो। तो 4 महीने मैं फिर जॉब भी किया, वहां पे मेरे को लग गया था 12 LPA का पैकेज। देन आई वाज अर्निंग अराउंड 80 to 1 लाख पर मंथ। तो पीसीसी में रहते भर में भी मैं जॉब किया, लेकिन वहां पे मैं फोकस फिर दोनों जगह कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, इसलिए मैं छोड़ दिया 4 महीने करके, क्योंकि अर्निंग भी कम थी और लर्निंग तो हो भी नहीं रही थी कुछ। तो उससे अच्छा यही करूँ। Got it. You made a good decision. Thank you for trusting back and closers. So अभी यहाँ पे आपको 1.5 साल हो चुका है, अभी आप फ्रेशर से एक एक्सपीरियंस सेल्स क्लोजर बन चुके हैं, आपको पता है कि कैसे डील करना है। So I'm having a like biggest question ever is like you look really introvert person. Like जब भी मैंने भी आपके साथ इंटरेक्ट किया है, कोई भी आपके साथ इंटरेक्ट करता है, यू हैव अ फ्रेंडली जोन बट आप इंट्रोवर्ट भी हो। सो बहुत सारे लोगों को एक मिथ होता है कि जब भी हम सेल्स में काम करना शुरू करेंगे, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करना नहीं पसंद, मैं कैसे डील कर पाऊंगा ये फियर को, ये प्रॉब्लम को? तो आपने कैसे डील किया है? बात यही थी कि मेरे को उसका पेन पॉइंट पता था, मेरे को उसको क्या जवाब देना पता। जवाब नहीं होगा तो मैं नर्वस फील करूंगा, चेक करूंगा, ऐसा वैसा रहेगा, हाथ शिवर करेगा। लेकिन अगर जवाब हो तो आप देना शुरू कर दो। इसलिए मैं हमेशा डायरी रखता था, ताकि ये पॉइंट, जब भी ये पॉइंट पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, ये पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा। मैं जहां भी जा रहा हूँ डायरी लेके जा रहा हूँ। मेरे को आंसर पता है, फिर भी एक होता है, तब भी डायरी में आगे खोल के रखता था। ऐसा करता था मैं बस। ग्रेट। सो अभी आपको 1.5 साल हो चुका है, जो भी हमारे क्लोजर अभी आपको देख रहे हो के, एंड जो भी एमबीए के स्टूडेंट है या फिर कोई भी स्ट्रेंजर आपको देख रहा है, आपने जॉब भी साथ में करी है, आप फुल टाइम भी काम कर चुके हो, तो क्या आप एक आइडिया दे सकते हो कि आपको कैसा रूटीन बनाना चाहिए, या फिर आप कैसा रूटीन फॉलो करते हो कॉलिंग के लिए, ताकि आप 100+ डायल कॉल कर सकते हो, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो? तो आप एक बार रूटीन बता दीजिए। रूटीन कुछ नहीं है, आप इनकंसिस्टेंट होगे, ग्राफ आपका ऊपर नीचे डेली का जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डेली 5 बजे सोचोगे तो उठ ही जाओगे। कभी आप रात में लेट सोओगे तो ऑब्वियसली आप 10 बजे तक भी सो सकते हो। लेकिन ये है कि मेरे को डेली का इतना सेल निकालना था, बस वही फैक्टर है कि आप कॉल्स जितने भी करो, कम करो ज्यादा करो। अगर जिस दिन आप जल्दी उठ जा रहे हो तो ठीक है, ज्यादा सेल्स कर लो, लेकिन फोकस करो मोर नंबर ऑफ क्लोजिंग करने का, बस कॉलिंग करने का नहीं। मोर नंबर ऑफ सेल्स निकालो, आप लेट भी उठोगे चलेगा। गुड गुड। सो कन्वर्जन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। द मेन थिंग इज, अभी बैक एंड क्लोजर में आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? कोई भी 3 चीज आप बताना चाहो। हाँ, तो फर्स्ट फैक्टर कि यहाँ बीसीसी इज अ प्लेटफॉर्म where we can easily earn money, and second of all here we get to learn many new things, like courses there, and we can ask for some course, we can start learning from there, from a side to side, and कॉलिंग के साथ साथ आप कोर्स भी लर्न कर सकते हो यहाँ पे। और टीम की सपोर्ट बहुत अच्छी है, आप कभी भी किसी से पूछोगे तो वो आंसर कर देगा। एंड इवन वीकली ट्रेनिंग्स होते हैं, डेली यहाँ पे रिप्ले होता है, रोल प्लेस होते हैं। तो ये सारा फैक्टर है जो बीसीसी का मेरे को अच्छा लगा कि किसी भी कंपनी में जाओ तो कोई बताता नहीं है कि क्या करना है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या करना है, और देन यू आर नॉट डूइंग, देन इट्स योर फॉल्ट, बिकॉज आप, मैं जॉब पे भी गया, मेरे को बताया नहीं क्या क्या करना है, बस जाओ
मिल के आओ इस आदमी से। मैं ऐसा, तो भाई उस पर जाके क्या बात करना है, कुछ बताओगे नहीं। तो कोई आप पे टाइम नहीं देता। यहाँ पे आपको समय दिया जा रहा है, आप पे समय इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, तो आपको भी उनके समय की कदर करनी चाहिए। ग्रेट। नाउ लेट्स रिवील द राज, द बिगेस्ट सीक्रेट। आप अभी 40 lakhs क्रॉस कर चुके हो, आपने अभी तक 1.5 साल में 40 lakhs रुपीज अर्न कर रहे हैं। सो आप मुझे अपनी बेस्ट 3 चीजें बताइए कि अगर कोई पर्सन आपको देख रहा है जिसको भी 40 lakhs रुपीज कमाना है, तो उसको क्या चीजें करनी चाहिए? कुछ नहीं, बस आप कंसिस्टेंट रहो, और कंसिस्टेंट रहो, एक गोल बनाओ और उसको अचीव करो। और कुछ नहीं मैं बोलूंगा। एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये नंबर चाहिए, नंबर से खेलो बस। मेरे को ये नंबर चाहिए, कैसे करना है, आप अपना फैक्टर निकालो। आपका प्लान डिफरेंट होगा, मेरा प्लान डिफरेंट। ग्रेट। सो अभी जैसे कि बहुत सारे क्लोजर्स है जो बोलते हैं कि राजकुमार सर इतना कमा रहे, राजकुमार सर ये कर रहे हैं, तो राजकुमार सर हमें ट्रेनिंग कब देंगे? तो आप कब अवेलेबल हो उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए? मैं तो अभी खुद ही सीख रहा हूँ, लेकिन अगर ट्रेनिंग चाहिए तो देखो, डिफरेंट प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मैं अब सारे प्रोडक्ट का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है जहाँ पे आपको हर जगह लागू होगा वो मैं बता सकता हूँ, तो उसके लिए मैं ओपन हूँ। गुड। सो एनी एडवाइस फॉर अ पर्सन हु आर योर कलीग, मतलब जो आपके कलीग रह चुके हैं, जो एमबीए के स्टूडेंट है, या फिर जो कोई स्ट्रेंजर ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए कोई आप एडवाइस देना चाहोगे? हम्म, मैं तो वैसे किसी से कांटेक्ट में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब साइड अर्निंग यहाँ से बीसीसी कर रहा था, मैं किसी को बताता भी नहीं था। बस खुद में बिजी रहने लग गया। मैं पहले चाह रहा था, जबकि जब मैं बीसीसी से स्टार्ट किया तो सेकंड ईयर में था, मैं भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। मैं भी सबके साथ घुलना मिलना चाहता था, लेकिन मैं लोगों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और अपने जब भी कॉल्स वॉल्स है अपना अपना फोकस करने लगा, लोगों से दूरी मेंटेन रखने लगा। भाई मेरे को क्या करना है मेरे को पता चल गया है। जब पाथ ही नहीं दिख रहा था, तब आप दूसरों में खुशी ढूंढते हो, चार लोग आपकी बात सुने, आप उनसे इंटरेक्ट करो, लेकिन अब पाथ पता चल गया है, तो लोग की क्या जरूरत है, आप अपना काम करो। Good, good. One question personally from my side is like आप अभी बहुत अच्छा कमा रहे हो, like अभी आपकी एज इज लाइक अराउंड, आप 23 to 27 की एज ग्रुप में हो। 24। 24, ओके, आप अभी 24 हो। सो इस एज में महीने का लाइक 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख रुपए कमाना, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। नाउ मैं जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्या उनको पता है कि आप इतना कमा रहे हो, या फिर दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट? मैं जनवरी मंथ में उन्हें बता दिया था, पिछले अगस्त में ज्वाइन किया था, फिर जनवरी में जाके बताया, क्योंकि एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आना शुरू हो गया था। उतना मैं अब बैंक में रखूंगा और मेरे पेट में बात पच जाए, ऐसा होगा नहीं। मैं बता दिया जाके फिर। ग्रेट। सो क्या उनका रिएक्शन था? मतलब क्या उनको लगा कि आप 2 नंबर का धंधा कर रहे हो, या फिर उनको लगा कि यस, नहीं, राजकुमार अच्छा काम कर रहा है? नहीं, पहले लगा था कि क्या ये कर रहा है, पढ़ाई पे भी ध्यान दो। फिर पढ़ाई पे मैं ध्यान देने से रहा, फिर मैं पूरा इधर ही ध्यान देने लग गया। तो फिर वो पहले सोचते थे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, अब वो नहीं बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब बोलो काम करो। कितना कमा रहे हो? अगले महीने कितना आ रहा है? अगले महीने 2.5 तो आ जाएगा, 2.5 लाख। चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी तक हाईएस्ट एक महीने में कितना कमाया है? अराउंड अराउंड 7 लाख। अराउंड 7 lakhs। दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के पैकेजेस 7 lakhs के नहीं होते हैं। आप एक महीने में 7 लाख रुपए कमा रहे हो। एक और क्वेश्चन है विद द सेम फॉलो अप क्वेश्चन, कि आप इतना कमा चुके हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बैंक अकाउंट में तो इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो क्यों काम करना है? मतलब मेरा गुजारा तो चल सकता है, मतलब मैं इसको इंटरेस्ट पे लगा लगा के बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकता हूँ। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चलता है? हम्म, हाँ ये चलता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो फिर मैं अब क्यों अर्न करूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, नंबर्स मेरे को छोटे ही लगता है हमेशा। तो मेरा एम था कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लूंगा। मैं हार्डली 32 ईयर्स तक काम करूंगा, उसके बाद इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा कि मैं फिर आराम करूं जिंदगी भर। क्यों खटने का, जब आप 5-6 साल ही काम करके पूरा जिंदगी आराम कर सकते हो। आगे वाली पीढ़ी अपना काम करेगी, आप उसके लिए क्यों करोगे। दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली इंस्पिरेशनल थिंग। सो आपके नेक्स्ट
मुझे 2 शॉर्ट टर्म गोल एंड एक बिग टर्म लाइक लॉन्ग टर्म गोल बताइए कि आप क्या सोच रहे हो विद बीसीसी और इन पर्सनल लाइफ आप क्या अचीव करना चाहते हो? Within 1 year, my मतलब कि target, my aim is to earn more than 1 crore. So I just want to cross that figure and लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसको शॉर्ट टर्म गोल बोल दो, लॉन्ग टर्म गोल, दोनों सेम ही है। मतलब कि शॉर्ट टर्म गोल तो मंथली टारगेट्स हो गया मेरे। लॉन्ग टर्म गोल मेरा 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर करना है। अभी जैसे 40 लाख का हुआ, तो अभी यहाँ से 1 ईयर करना है। मतलब कि मेरा एम तो था इसी साल करने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। चलेगा, कोई बात नहीं। नंबर ही बड़ा सोचा था, कम से कम मिडवे तो आया मैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने 1 CR सोचा हुआ है। विल बी रिकॉर्डिंग योर नेक्स्ट केस स्टडीज व्हेन यू हिट 1 CR एंड आई एम डैम श्योर अगले 6 महीने में आप ये कर सकते हो बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ प्लानिंग फॉर यू टू। सो लेट्स वर्क रियली हार्ड। एनीथिंग जो आप लाइक एंड करने से पहले बोलना चाहोगे या कुछ और सजेशन देना चाहोगे? सजेशन रिगार्डिंग क्या? लोगों जो जो बीसीसी में है या जो ये वीडियो देख रहे हैं? वॉट एवर यू फील, दोनों को देना चाहो, दोनों को। देखो, बीसीसी पैसा टेबल पे आपको लेना है तो आ जाओ, और जो यहाँ काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो, काम हो जाएगा। बस यही मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू राजकुमार फॉर योर टाइम। आपकी पर आवर वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू एंड यू आर फर्स्ट हैशटैग रीच एफ ऑफ बैक एंड क्लोजर। आई वुड लाइक कि आपके जैसे और भी बहुत सारे हैशटैग रीच एफ बने, हम बहुत सारे लोगों की केस स्टडी भी रिकॉर्ड करें एंड आपसे इंस्पिरेशन लेके लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। To become hashtag ReachAF in our community, click on the link below and see you in the next video.